Good evening and a warm welcome to all who are present in this webinar. I am Shohini. I'm a member of the TIS IT resource team. I hope everyone is taking good care of yourselves, staying at home, eating healthy, and staying safe, which is extremely important in this situation. So, as most of you know, that IT program, which is Integrated Approach to Technology in Education, which is a Tata Trust initiative, has been running in various states of India since 2012 in government schools, madrasas, and learning centers. IT approach basically talks of the pedagogical framework that meaningfully integrates technology and curriculum and using various ICT applications within the curriculum and classroom teaching learning process, making learning contextual, and also ensuring that students are not merely only consumers of technology but participants and becomes creators and producers of ICT artifacts, actively constructing their own learning experiences. Right. So IT has been working with the teachers across these states, capacitating them and providing them various opportunities for their own professional development to practice and implement this kind of pedagogical approach in their classroom teaching. Drawing from the experience of IT, we have been drawing from the experience of IT on ground, how we have been implementing it since 2012. This developed a certificate course for in-service teachers on ICT and education, through which we have been able to create a huge cadre of teachers whom we also call the master trainers, and who have been actively implementing IT themselves and mentoring other teachers to also practice IT in their own school and madrasas. Under the IT program, we have been implementing various events like student melas, student camps for quite a long time now. Adding to these endeavors this year, conducting IT Web Series 2020, which we call, with teachers and students on various topics. And it gives me immense joy to share that since January 2020, we have conducted 6 webinars till now, catering to various themes and reaching out to more than 460 students across USA, that was mainly a webinar on robotics, and students from West Bengal and Assam shared with the students of Iowa what they have been doing in robotics. And yeah, so that was also a great experience. And recently, during the this lockdown period, we had hosted an open IT webinar with the theme of a web quest for students on communicable diseases, in which students created and also participated in online quizzes. So one of our master trainers, and after that, one of our master trainers also conducted a tutorial webinar on how to use Scratch, which is an ICT application developed by MIT, and how it can be integrated in teaching learning process. And today, it gives me immense pleasure to announce that today's webinar session will be conducted by one of our master trainers from Kolkata, Mr. Taposh Rakshit, who has been a part of our bigger IT family since 2017, when we had conducted the certificate course with teachers from Kolkata. So Taposh sir himself learned the ICT applications called um, learned himself the ICT application of Python in one of the 21st century workshops that TIS had organized in 2018 in Mumbai. And since then, he had been integrating various ICT applications in his lesson plans in mathematics, and Python has been one of them. So this was mainly his idea, and he came up with this idea that he wanted to teach
how to use Python. He wanted to teach more teachers and students how to use Python and how to integrate it within the teaching learning process and within the curriculum. So I will not waste any more time, and I would hand it over to Taposh sir now, who will be continuing with the session. Before that, I would just like to mention that we have more of such webinars planned in this month, and we have two upcoming webinars in April, one of which will be one where students from Assam, from government schools in Assam, will be presenting their IT projects, and one webinar that will be an open webinar for everyone to participate. So we are expecting some government officials also from Assam and West Bengal to join today's session. So I just thought we'll just see if they have already joined. Yeah, Rominda Anyway, has already joined. Yeah, yeah. So that okay. I'll just unmute him. Yeah. So yeah, right now we have Mr. Roman Das, who is a state consultant in Samagra Shiksha, Assam. Rominda, it's a great pleasure to have you in today's session. I would just request you to say a few words, and also if other government officials have joined from Assam, if you can just introduce them. So I'll just quickly hand it over to you. Roshan, if you can unmute him. Yeah, I have already done. Roshan? Yes, yes, Rominda. Yes. Okay, thank you, Roshan. Thank you, Sohini. So it's a great pleasure that so many teachers from Assam is joining in this webinar. And I have checked the list, and one of the district program officer, I think Mridu Pawan Datta, I think he's one of the district program officer. He has already joined in this webinar, and I think more district officer and state officials will be joining in this webinar during the course of the webinar. So okay, we have to start this thing, and I think that teachers are eagerly waiting for the discussion. It's a nice discussion, I think. Okay, so best wishes from my side, and I hope this webinar will be a great success. Okay, thank you, Sohini. Thank you. I'll be throughout the session. Yeah, thank you so much, Rominda. So yeah, we'll now go ahead with the session. Taposh sir, I would request you to start with your session on Python. Yeah, thank you. I'll just mute myself. Taposh sir, if you can just start. Okay. Hello, friends. Hello, everyone. I will congratulate and thank you to join the TEAS webinar session. And today we are discussing about the Python. Basically, Python is a very interesting and the fast language that is most of the industrial peoples like Facebook, Amazons are actually taking their procedures with the Pythons. So it is a very easy to understandable language, more easy than I say C++ or Java. And that's why Pythons are actually taken with very ease. So we start with all the proceedings with a PowerPoint presentation first. So Python is an object-oriented language that is easy and runs as an operating system, including Windows, Linux, Mac, and on various other platforms. So in your mobile Android phone, there is an app by which you can use or do Python is known as Python 3. So with the help of this, as I talked about, it is named after cult comedy show, which is known as Monty Python's. Roshan sir, here they say that you cannot start screen share while the other participating is sharing. Roshan Okay. sir? Okay. Yes. Now just try sharing the screen because you have joined twice, so that's why.
a second, sir. I'm trying to fix it. Okay, can you try No, to share the screen again? no. You cannot start screen share while the other participant is sharing. Okay, so can you try now? I think it'll allow you. Okay. Yes. Thank you. So Python 3, there are two types of Python, which is one initially in the year 2000, the Python 2 started. And from after 2000, the Python 3 is started in the year 2018. So we don't know how Python is working. We just know in the year 2018 or so. And it is a initially it is a very tough day for me to understand the language. But when the SARs are actually given lectures on Python on the Mumbai camp. So it is remain quite similar. And then after seeing lots of YouTube's videos, I actually it is become very easy to understand how the language works, and so it becomes now familiar with me little bit. I am now also I am actually acting as a novice in this language, and I do lot of things and incorporated it in my school study so that my students will be easy to understand and easy to use, and the computational thinking on them will enrich by using the Python. Python supports basic data types such as number and strings. And numbers, and you all know that 1, 2, 3, 4 all are numbers. They are maybe rational number, irrational numbers, and many other things. And strings are if you write any words like how are you, and within code if you write it, then that will be treated as string. There are more complex types like list and dictionaries are also there in Python. Pythons also supports several program paradigms. Paradigms, you know, that is a programming language by which we can dictate computer what to do and what to give out as an output. And there are procedural program, function program, and object-oriented program. So actually the concept of object-oriented program sometimes written as OOP, object-oriented program, and it actually focus on creating reusable code, and also it is sometimes known as, in short, known as dry. Dry means what? Dry means actually in computer language it means don't repeat yourself. A process of using details from a new class without modifying existing class is actually known as dry. Don't repeat yourself. Now, this is the picture of the creator of Python, Guido van Rossum. So he is actually a G kind of person, and we actually I love him, and or the Python user actually love him. So data in Python is strongly typed. Data in Python is strongly typed. That means what? Strongly typed means what? It is if you attempting to add a number and a string, you know what string is. String means if you are like you are typing your name with overhead commas in there, so it is actually acting as string. So if you add 5 with a string number, then that will show a error message. But it is a dynamically typed. Dynamically typed means you can take any alphabet or any word as a variable as your declaration. It also has 52 digits of precision. That means if you wanted to find out the value of pi, it easily gives 52 digits after decimals. And precision means all you know that it is correct, the error-free number. So it is also very fast, and it has a accuracy of 10 to the power 308. 10 to the power 308 is the accuracy. This is the creator of Python, Guido van Rossum. Actually, he was employed at Google for nearly 7 years.
Today we have to learn the topic. So initial thing, the basic is how to print hello world. So if you are using the computer screen, Python edu are also there, and there are two different platforms by which you can easily use Pythons. So they are actually known as the debuggers. So two platforms are, one is known as the Anaconda platform and another is known as the PyCharm, JetBrains PyCharm. I said one is known as the Anaconda platform and another one is IntelliJ or PyCharm platform. So how you print the hello world? This is our first exercise for today's work. And the second one will be, we have to print things. Take a variable as a. Take a variable as a and named is that, give it a value as hello, and take a variable as b, give its name, your name, anything your name as b. Now you have to print hello your name. That means if my name is Tapas, so I give a as hello and b as Tapas. So if I print the program or write the program in such a fashion that it will be as an output, it will give hello Tapas. So let's try to do it. So I try to open Anaconda platform. So this is the Anaconda platform and I opens a new file. So this is the new file. You see, this is the Anaconda platform of operating the Python. So what is, you have to print hello world. So initially we take a two-step method, that we take a variable as h. We take a variable as h and give it a value assignments as hello world. So in this case, you Okay, should Tapas sir, just sorry for interruption. I think there are some participants who are keep on just scribbling on the screen. So I would request them not to do because it's creating like a lot of problem. They are just scribbling on the screen. Please do not use the annotate tool in your phone. So please. let's together learn the basic or Yeah, the yeah, amazing world of Python. Don't do yeah, anything silly like that. yeah. Just try to learn and try to engage yourself in the magic of Python. So if you learn, it actually give you a lot of pleasure, like excess the doing that this kind of. So what we'll have to do, the hello world is actually what? It's Tapas sir, we also got some request to speak in Hindi. So if you can sometimes speak in okay. Hindi, so that will be very much helpful. ओके सो Thank you, sir. Yeah. हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है. तो कैसे करेंगे? समटाइम्स व्हाट हेलो वर्ल्ड, इट इज एक्चुअली टू वर्ड. So these two words are actually in Python will be treated as what? In this case we will be treated as it the string. So strings are generally given written as with the help of the this type of sign, the overhead comma sign. So just type hello world, HELLO, hello, and after that write world. So this is hello world. Now we have to program ourselves, program so that the outcome will print out as hello world. So how will you do that? Just enter, write print. Print is a function by which you can see the output of your program. So give the commas, and now what you are trying to print out, what will be your outcome? My outcome is, or our outcome is hello world. So we just write H only, and then we run the program. So if we run the program, see, it will give you hello world.
Clear? Now, but if you write like that, if you write print, then give the bracket and H, then what you think that the outcome will be? Then the outcome will be, see, let's see what will be the outcome if we use, instead of only H, if we use asterisk and H. So then you see the outcome will be only H. This is known as, inside the parenthesis, it is known as the parameters. So whatever parameters you will give, it will give the output like that. Now the second question, what is the second question? Our second question is, we have to give two variables. We have to take two variables, A and B. A will be as hello and B will be as your name. And we have to print out hello, your name. And second one is hello, name, how are you? Hello, name, how are you? So this is the two tasks we have to perform. So how will you do that? तो हमको क्या करना है, दो पार्ट में इसको करना है. तो फिर से हम लोग वही एनाकोंडा फ्रेमवर्क तैयार किए. तो हम लोगों को दो चीज चाहिए कि दो वेरिएबल. एक वेरिएबल क्या है, ए. A will be taken as hello. So A will be taken as hello. So this is hello. A is hello. Now what? You have to, if you write then B as your name and you are trying to print out A and B, then that will give you an error message, because unless and until you print out A, it will not be defined. Then first you have to define A, and how we define A? By print it out. So we print A without the comma sign and run our program. So it will give you hello. Now I take another variable V, and in this case I write, you write your name. If you are doing with your computer Anaconda or PyCharms or Pyroid in mobile, so just write your name. Now B also should be defined, so we have to print B again. So we have to print B, and then we have to run our program. So when we run our program, it print out my name, and then what? After that we have to print the total, hello Taposh, hello and the name. So how will you do that? Since A and B defined हो चुका है, A और B डिफाइंड हो चुका है, अब क्या करना है, A और B को जोड़ना है. तो हाउ हम लोग जोड़ते हैं, जैसे मान लो हमको जोड़ना है, तो these are two strings. How strings are added? So if you try to add 2 and 3, हमको अगर 2 और 3 को ऐड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं? So we are actually using mathematical operator of plus sign. So हमको plus sign का जरूरत होता है. तो in this case also we have to add two string. So दो string ऐड करने के लिए भी हम लोग वही plus sign का इस्तेमाल करेंगे. So हम लोग लिखेंगे क्या, print लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या, क्या है ये, पहला है हेलो चाहिए हमको, तो हम लोग A लिखेंगे, उसके बाद हमको ऐड साइन देना है, and then we give a B sign and run our program. So see that it's printed out hello Taposh. But there is a clumsiness. ये जो हम लोग लिखे हैं, ये जो आउटपुट मिला है, ये हेलो तापस में हेलो और तापस मतलब नेम एक साथ जुड़ गया है. तो हमको थोड़ा गैप देना मांगता है, तो ये गैप हम लोग कैसे देंगे? सो गैप देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग थोड़ा सा कंप्यूटर को बोलते भाई थोड़ा गैप दे दीजिए. ऐसे बोलने से तो वो नहीं सुनेगा, तो उसमें क्या होगा, एक गैप हमको डालना होगा, और वो भी एक एडिशन है, तो प्लस साइन देंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एक गैप, ये हो गया 2 कॉमा के भीतर ये गैप फिर दिखाएगा, फिर डालेंगे बी. अब हम लोग इसको रन करते हैं. So now if we run, see, it shows hello Taposh. So this is a very easy technique by which you can
strings and two other. Now the third part 2 problem is you have to give a thing that you have to write. Now see that हमको क्या थर्ड में क्या चाहिए, जब हम लोग कोई कमेंट लिखते, कमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑन द पाइथन स्क्रिप्ट. मान लो हम अभी ये इसमें काम करते हैं क्योंकि पाइथन अभी बहुत अच्छा लग रहा है, काम कर रहा है, 2-3 महीने के बाद और ये बहुत बुरा है अब नहीं करेंगे, मगर 7-8 महीने के बाद फिर से आ गया पाइथन बहुत जरूरी था, हम भूल किए थे, उसको करना है. तो अगर मैं मेरा पिछला जो किया हुआ देखेंगे तो उसमें अगर कमेंट नहीं लिखा रहता है तो तब को समझ नहीं आएगा कि किस लिए हमने ये सब किया. तो कमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू राइटिंग द स्क्रिप्ट इन पाइथन. तो कमेंट यहाँ पे कैसे लिखा जाता है, जो सिर्फ जो लिख रहा है उसके लिए है, कंप्यूटर के लिए नहीं है. तो टू राइट अ कमेंट वी हैव टू यूज द हैश साइन. So we use hash sign. If you write hash sign and write some words or a paragraph, computer won't be taking it as a code. So what we have to type? We have tried to type hello name, मतलब your name जो भी जिसका नाम है, और फिर लिखेंगे कॉमा देके how are you. तो ये हम लोगों को लिखना है. तो ये हम लोग कैसे लिखेंगे. तो हेलो नेम तो आ गया है, हेलो तापस आ गया है, फिर इसमें एक कॉमा डालना है और उसके साथ फिर डालना है हाउ आर यू. सो लेट्स ट्राई. सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वही लिखेंगे प्रिंट, क्योंकि आउटपुट प्रिंट से ही मिलता है, तो आप प्रिंट लिखें. फिर क्या है, ए चाहिए, ए, फिर थोड़ा गैप चाहिए इसलिए प्लस साइन देके फिर प्लस साइन देंगे, देके क्या करेंगे, बी मतलब जो जिसका नाम है वो लिख दिए, फिर से प्लस साइन दिए. फिर अब क्या चाहिए, फिर कॉमा चाहिए. अगर ये कॉमा चाहिए तो तब जाके सिर्फ कॉमा देना है, मगर कॉमा देने से कॉमा को कैच नहीं करेगा, कॉमा को एक एपोस्ट्रोफिस के भीतर देना पड़ेगा. फिर क्या चाहिए, फिर प्लस चाहिए और फिर हाउ आर यू लिखना है. सो हाउ आर यू कैन बी रिटन विथ लाइक दैट. So how are you? Now if you type this, then that comma and how are you will actually be touched with each other. So in order to do that, a space, so again we have to give a space, after that the plus sign and how are you. So now we are trying to run this program. So see that the name comes hello Tapos, how are you. Now if you try to find the comma will be a gap after the name, so again you have to give it like that. So hope you are understanding the first part of how to type or give some space with the help of the Python. Next go to the PowerPoint presentation. Tapas sir, we have got few questions from the audience that how Python can benefit, and also one more question has come that if you can explain something about Pyroid 3 app, how to install it and where to use it. Actually, Pyroid 3 is easily available to Play Store. So just type Pyroid 3 or Pyroid, just type Pyroid in Play Store and it will be easily be downloaded. So Okay. it is downloaded easily. So now the mathematical operators, let's talk about something mathematical operators, like how it is easy to give students friendly, like it is very fast. So if you try to addition, subtraction, multiplication, division and operator precedence, it is easily done with Python. So these are the thing, and then we have to do the next one exercise will be the what will be the outcome of this value, 12 plus 3 divided by 4 into 6 minus 2. So now let's try to do some addition and subtraction with the Python.
So it is very easy to add. ये कैलकुलेटर की तरह ही काम करेगा, but it is very fast. Like if you add 3 plus 4, so what will be the result? So result is 7. So if you subtract any numbers, 4 minus 3, 4 minus 3, so what will be the result? The result is 1. Now if you multiply 4 multiply, Sir, we are constantly getting requests to speak in Hindi. So okay, can we? तब जाके पूरा हिंदी में ही बोलते हैं क्या? हाँ, okay, Tapas sir, that will be good. ठीक है, तो तब जाके हमको क्या करना है, हमको 4 से 3 को या कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है. तो 4 को 3 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वी ऑल नो द रिजल्ट विल बी 12. नाउ अगर हमको डिवीजन करना है तो पाइथन के पास डिवीजन का 3 अलग अलग तरीका है. यहीं पे ये दूसरे से अलग हो जाता है. तो जैसे अगर हमको 6 को 3 से डिवाइड करना है तो फर्स्ट स्टेप ऑफ डिवीजन 6 divided by 2. So if you run this, that is given as 3. It is not 3. It is 3 now. देखो ठीक से ये है क्या 3.0. So actually it is not an integer. ये integer नहीं हुआ, ये एक float हो गया. कोई भी डेसिमल नंबर अगर हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं तो पाइथन में उसको बोला जाता है फ्लोट. जैसे मान लो कि मेरा कोई फ्लैट है, फ्लैट में एक तला है, फिर फर्स्ट फ्लोर के बाद सेकंड फ्लोर है, तो फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर यू कैन टच. इन बिटवीन उसके बीच में कोई भी जगह हम लोग टच नहीं कर सकते, वो खाली जगह है, वो ऐसे सोच सकते हैं फ्लोट कर सकता है. तो इसलिए अगर 2 और 3 के भीतर बहुत सारा जो भी नंबर्स रहेगा, they are all known as float. So one slash give you a floating number. So actually it is the actual quotient will you give, not the integral value. But if you perform the same exercise with a double slash, so then that case it will you give आपको मिलेगा सिर्फ 3. So that means यहाँ पे अगर इंटीग्रल हमको डिवीजन करना है, इंटीजर में सिर्फ कोशेंट को दिखाना है, तो कोशेंट दिखाने के लिए हमको तब जाके डबल स्लैश का यूज करना पड़ेगा, मतलब इंटीग्रल कोशेंट मिलने के लिए. और अब होता है कि रिमाइंडर किसमें कितना रहेगा, तो रिमाइंडर दिखाने के लिए हम लोग मॉड्यूलो साइन का यूज करेंगे, जिसको कभी कभी परसेंटेज साइन कीबोर्ड में जो रहता है. तो अगर ये साइन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, so that will give you the remainder. So 6 modulo 2 will give you 0 because 6 is. Sir, the voice is a little bit unclear. Can you check your microphone if it is okay? Okay. तो अगर this is fine. Yes. अगर हमको 6 को तब जाके 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर चाहिए, तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग तब जाके ये साइन का इस्तेमाल करेंगे मॉड्यूलो. जैसे हम लोगों को कैसे इवन नंबर पता चलेगा, कैसे ऑड नंबर पता चलेगा, तो अगर हम लोग कोई भी एक बड़ा नंबर ले लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7, तो ये जो नंबर है इसको अगर ये मान लेते कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो अगर ये 3 से डिवाइड होता है तो हम लोग वही मॉड्यूलो रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और इसको रन करेंगे. तो देखो यहाँ पे रिमाइंडर दिखाता है, ये 1 रिमाइंडर है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग. तो 3 4 कोई भी नंबर रिमाइंडर है तो इसका मतलब वो कंप्लीट डिविजिबल नहीं है. तो ये हो गया हम लोग का. तो अगर हम लोग वो सम्स को करते हैं तो क्या सम्स था, हम लोगों का सम्स था 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय. सो डिवाइडेड के लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे, आप सोचो. हम लोग क्या इंटीग्रल डिवीजन चाहिए या फ्लोटिंग डिवीजन चाहिए. तो अगर हम लोगों को इंटीग्रल डिवीजन चाहिए तो हम लोग 2 स्लैश का इस्तेमाल करेंगे. डिवाइड 4 इंटू 6 इंटू यहाँ पे एस्टेरिस्क से दिया जाता है पाइथन में, इंटू 6 देन -2.
So why Python is user friendly? Now in your in class lower classes, what happened? We are given some acronyms to these types of operator precedence. तो हम लोग कुछ एक्रोनिम्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे BODMAS. तो BODMAS में जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें क्या आता है? तो BODMAS अगर हम लोग लिखते हैं, देखो अगर हम लोग यहाँ पे ये दे दिया क्योंकि पाइथन इसको नहीं जान पाएगा. सो BODMAS अगर लिखते हैं तो इसमें क्या दिखाता है? इसमें दिखाता है ब्रैकेट, फिर है ऑर्डर, फिर है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन. In some other countries, they are also written an acronym like PEMDAS. तो PEMDAS का मतलब हो गया यहाँ पे पैरेंथेसिस मतलब वही ब्रैकेट, E मतलब हो गया एक्सपोनेंट, M मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. कोई जगह पे इसको हम लोग BODMAS बोलते हैं. सो डिफरेंस. तो अगर ये अलग अलग स्कूल में अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्रोनिम में पढ़ाया जाएगा तो क्या होगा? स्टूडेंट्स को लगेगा जो पहला दो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर द प्रॉब्लम्स कम्स व्हेन वी आर ट्राइंग टू डू द डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. हमको लगेगा कि डिवीजन का प्रेफरेंस मल्टीप्लिकेशन से आगे है अगर हम लोग BODMAS सोचते हैं, और अगर हम लोग PEMDAS सोचते हैं जो क्या होता है कि वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो करते हैं, तो वो लोग सोचेगा कि मल्टीप्लिकेशन का प्रेफरेंस डिवीजन से आगे है और एडिशन का प्रेफरेंस सब्ट्रैक्शन से आगे है. मगर एक्चुअली दिस इज अ फॉल्टी सिस्टम वी आर रनिंग. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रेफरेंस किसी से किसी का आगे नहीं है, दोनों का इक्वल प्रेफरेंस है, सेम एज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो कैसे जानेंगे? तो अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट में जाएंगे सम करते हुए, जो पहले आएगा, अगर डिवीजन यहाँ पे पहले है तो हमको डिवीजन करना है, और अगर मल्टीप्लिकेशन पहले है तो पहले मल्टीप्लिकेशन करना है. ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले डिवीजन करो फिर उसके बाद एडिशन करो या डिवीजन करो उसके बाद मल्टीप्लिकेशन. Tapas sir, the voice is again breaking, and just I will interrupt for because Hello. now the voice is clear, and I would request those whoever are using this doodle, please do not use this annotation tool right now, because this will really hamper the session. So I'll clear it right now, but please I would request all of you not to use this. If you have any problem, you can. Thank you. So अगर हम लोग इसको परफॉर्म करेंगे तो क्या आएगा? पहले 3 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का प्रेफरेंस इक्वल है तो कुछ भी कर सकते हैं, पहले एडिशन उसके बाद सब्ट्रैक्शन या पहले सब्ट्रैक्शन उसके बाद एडिशन. तो ये चीज हमको हम जब पाइथन से काम की तब जाके हमको पता चला, क्योंकि हम भी स्कूल में पढ़ाए थे, बहुत साल पहले भी पढ़ाए थे कि पहले BODMAS से ही गए थे, तो पहले डिवीजन करना है उसके बाद. Sir, the voice has again started breaking up. Yeah. हेलो. Yeah, it's okay now. हेलो. तो डिवीजन को पहले करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है. डिवीजन मल्टीप्लिकेशन दोनों को हम लोग जो पहले आएगा सम करते हुए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, तब जाके उसको करेंगे. तो देखते रन करके इसका क्या आंसर आता है. तो द आंसर इज 10. सो आफ्टर दैट क्या होगा, हम लोग फिर से वापस से, तो इस तरह हम लोग सम्स करेंगे, स्टूडेंट को देंगे और इसका आंसर स्टूडेंट से भी निकाल सकते हैं या पार्ट बाय पार्ट हम लोग कर सकते हैं कि कैसे आएगा विद द हेल्प ऑफ दिस पाइथन. तो इसके बाद जो है इसके बाद है. हाँ. Before we move on, I think there is a lot of request to understand कि इसको हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं, और आपके पास अगर आपके बच्चों ने अगर कुछ बनाया है कोई एप्लीकेशन या जैसे यहाँ पे ये एक सम्स है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं. एरिथमेटिक सम्स में हम लोग इसको यूज करते हैं. ओके या. तो जैसा सम्स है क्या, तो ये सम्स को हम लोग कैसे पाइथन से सॉल्व कर सकते. तो
हैव अ शॉप, तुम एक शॉप का मालिक हो, वहाँ पे तुम मान लो सेलिंग कर रहे हो हैंड सैनिटाइजर जो अभी सर बहुत वॉइस कट जा रहा है सर, माइक्रोफोन थोड़ा अगर करीब लेके बोलेंगे। तो अभी हाँ अभी अच्छा, एकदम अच्छा है, परफेक्ट। ठीक है। तो तब जाके क्या होगा, मान लो तुम एक शॉप में सेल करते हो सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर सेल कर रहे हो। एक एक हैंड सैनिटाइजर का मान लो कि इसका जो एमआरपी है था कुछ मान लो 80 रुपीज, उसमें हम लोग 12% का डिस्काउंट डाल के ये अब सेल हो रहा है मान लो 70 रुपीज 30 पैसा करके। अब मान लो रोशन सर तुम्हारे दुकान पे आया और उनके पॉकेट में 400 रुपया का वो हैंड सैनिटाइजर खरीदेगा। तो कैसे हम लोग विद द हेल्प ऑफ पाइथन ये इस तरह का सम को सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा, रोशन सर को कितना नंबर ऑफ हैंड सैनिटाइजर तुम दे सकते हो सकता है ये 400 की जगह पे हो सकता है 4 लाख हो। इसका कॉस्ट प्राइस में भी थोड़ा 150 हो जाए, तो इस तरह का कितना देंगे, तो कैसे हम लोग मेरा अंडर का जो भी है कर्मचारी रहेगा उसको कैसे बोलेंगे कि 10 तो हैंड सैनिटाइजर पैक कर दो, रोशन सर लेके जाएगा। तो ये चीज हम लोग पाइथन से इजीली कर सकते। और क्या होगा, नोट सर वोंट बी हैप्पी इफ यू ट्राई टू सेल हिम अ पार्ट ऑफ द सैनिटाइजर। अगर पार्ट ऑफ द सैनिटाइजर दोगे तो उससे काम नहीं चलेगा। तो कितना सैनिटाइजर दोगे और कितना रुपया उसमें उसको वापस दोगे सर को, ये है पहला सम्स। तो पहला सम्स में अगर हम लोग इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इन दिस टू डू दैट सम वी हैव टू टेक The sound has again started. actually I am taking the microphone very close to my mouth. Okay. So, but Now it's clear. By the way, but now, actually it may happen that the internet speed is actually because of that may happens. Maybe okay. I don't know. So I think wherever you have kept your microphone right now, that will be a good Okay. point to keep. Yeah. So now how will you do that this size of them? So the सैनिटाइजर का एक का जो कॉस्ट प्राइस है वो है सेलिंग प्राइस जो है वो है 70 रुपया 40 पैसा और 400 रुपया का यहाँ पे है। तो कैसे इसको करेंगे, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो वेरिएबल्स लेंगे। सो दो वेरिएबल क्या होगा, एक हो जाएगा कि इसका कॉस्ट प्राइस लेते हैं कि तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मान लो COST लिख दिया। तो कॉस्ट इज इक्वल टू कितना था 70 रुपीज 40 पैसा 70.40, ये हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। और दूसरा में क्या था, रोशन सर के पास कितना मनी था, सो मनी कितना था, वो था 400। सो अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे कि जिससे ये आ जाएगा। तो हम लोग एक वेरिएबल ले सकते हैं, नया एक वेरिएबल ले सकते हैं कि बी और ये सी। तो बी क्या होगा, बी हो जाएगा मनी डिवाइडेड बाय कॉस्ट। अब इसको अगर हम लोग प्रिंट में डालेंगे, सो प्रिंट बी करेंगे तो क्या आता है देखते हैं। सो 5, सो दैट मीन्स सिर्फ 5 सैनिटाइजर हम लोग रोशन सर को दे सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 70 इज नियरली 6, अगर मल्टीप्लाई करते तो 420 हो जाता है, उससे ज्यादा। तो दैट्स व्हाई वी कैन इजीली पुट दिस थिंग्स। तो इस तरह छोटा छोटा सम्स हम लोग पाइथन से कर सकते हैं, बड़ा सम्स भी कर सकते हैं, वो हम लोग आते हैं। तो इसके बाद है सो वेरिएबल्स पाइथन में, जैसे यहाँ पे हम लोग कॉस्ट लिखे थे, तो कॉस्ट जैसे लिखे थे, मनी जो लिखे थे, ये सब है वेरिएबल्स। उसको एक नेम से हम लोग लिख सकते हैं, मस्ट बिगिंस विथ नंबर, वो अपर केस में भी लिख सकते हैं या लोअर केस में लिख सकते हैं, और अंडरस्कोर कैरेक्टर दे सकते हैं, बट कभी भी वो कोई नंबर से शुरू नहीं हो सकता है। दूसरा है एक्सप्रेशन, जो लिखेंगे वेरिएबल के बाद जो लिखे थे, जैसे कॉस्ट इज इक्वल टू 70.40, फिर मनी इज इक्वल टू 400, वेरिएबल के बाद इक्वल साइन देके जो भी चीज लिखते हैं, so these are known as the expression.
सो इसके साथ एक एक्सरसाइज है, जैसे है a इज इक्वल टू 24, तो a क्या हो गया यहाँ पे बोल, मतलब जानना बहुत जरूरी। a क्या है, b क्या है। सो a and b in this case they are acting as a variable and 24 is the value of a, so 24 this comma sign will be acting as a expression. Similarly 6 is expression. नाउ दिस इज थोड़ा सा अब बाद में सीखेंगे कि फॉर कैसे काम करता है, इन कैसे काम कर सकता है। फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे आई क्या होगा, आई एक वेरिएबल है, मगर जब ये आई प्रिंट के भीतर डालता है तो ये एक वैल्यू देगा। सो देन दैट्स व्हाई आई जो हो जाएगा प्रिंट के भीतर वाला आई जो है एक्सप्रेशन है। 1 इज एक्सप्रेशन बिकॉज वो रेंज के भीतर है, वो एक वैल्यू शो करेगा या कंप्यूटर को बोलेगा इस यहाँ से यहाँ तक करो। ए एक एक्सप्रेशन है, डबल स्लैश एक एक्सप्रेशन है, बी एक एक्सप्रेशन है। सो यहाँ पे अगर हम लोग इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो जानेंगे। यहाँ पे 1 2 3 वेरिएबल्स है और एक्चुअली 26 एक्सप्रेशन है। सो नाउ यहाँ पे हम लोग अगर स्केप कैरेक्टर मतलब कैसे करते पाइथन में लिखने के टाइम पे, स्केप कैरेक्टर एंड स्प्लिट स्ट्रिंग या टैब स्ट्रिंग से हम लोग कर सकते हैं। तो इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये थोड़ा एक प्रॉब्लम है। इसको करना होगा कि जैसे हमको लिखना है टाइम, थोड़ा गैप देके लिखना है ड्यूरिंग लॉकडाउन, और उसके नेक्स्ट लाइन में हमको लिखना है डूइंग, क्या करना है हमको, स्टे होम। इसको अगर हम लोग पाइथन से प्रिंट आउट करने की कोशिश करते हैं, टाइम चाहिए ड्यूरिंग लॉकडाउन, और टाइम के बाद चाहिए थोड़ा स्पेस देना है, टाइम में ड्यूरिंग लॉकडाउन लिखना है, और उसके नेक्स्ट लाइन में हमको लिखना है डूइंग, क्या करना चाहिए उसमें लिखना है स्टे होम। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको पाइथन में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको टैब स्ट्रिंग की जरूरत है। तो पहले क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, या तो हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। सो प्रिंट, तो टैब स्ट्रिंग का यहाँ पे जो काम करता है बैक स्लैश, यहाँ पे टैब स्ट्रिंग का काम करेगा बैक स्लैश। सो अगर हम लोग लिखते हैं प्रिंट, फिर लिखते हैं टाइम, तो यहाँ पे टाइम में टाइम डाले, फिर कॉमा, ये जो बैक स्लैश है ये टैब की का काम करेगा। टैब डाल के अगर हम लोग लिखते हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो तब जाके देखते हैं प्रिंट करके रन करके क्या आएगा। सो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग यहाँ पे कॉमा नहीं दिए, अगर कॉमा देते हैं हाँ, अरे क्या हो रहा, सो क्या हो गया, ये नहीं काम कर रहा क्यों। सो कॉमा टी, सो अगर ऐसे करते कि टाइम कॉमा ड्यूरिंग लॉकडाउन और फिर रन करते, सो ये देखो आ गया टाइम ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो ये तो स्लैश देके टी ड्यूरिंग लॉकडाउन करेंगे तो हम लोग के पास ये टैब की आ जाएगा। उसी तरह सेकेंड को अगर प्रिंट करना था तो हम लोग क्या करेंगे, वो नेक्स्ट लाइन में था, तो नेक्स्ट लाइन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
नेक्स्ट लाइन करने के लिए हमको स्लैश इन लिखना है। नेक्स्ट लाइन के लिए हम लोगों को स्लैश इन, तो अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं स्लैश इन तो इससे नेक्स्ट लाइन चला जाएगा। और नेक्स्ट लाइन में क्या था, डूइंग था, तो हम जस्ट ये दिखा रहे हैं कि इससे रन अगर करेंगे तो ये डूइंग आ गया। तो अगर इसके बाद फिर से अगर हम लोग स्लैश देके टी लिखते हैं, टी लिख के क्या लिखेंगे कि स्टे होम। सो इस तरह हम लोग सो ये हो गया टाइम ड्यूरिंग लॉकडाउन, डूइंग क्या करना है, स्टे होम। सो टैब देने के लिए हमको यूज करना है बैकस्लैश टी, और नेक्स्ट लाइन में अगर हमको जाना है तो हम लोग लिखेंगे बैकस्लैश इन। तो इसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है, तपस सर, वी हैव सम क्वेश्चंस। हाँ जैसे इसको हम कौन कौन से सब्जेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, कुछ आइडियाज अगर आप अभी बताएं। हाँ, ये जैसे हम दिखा रहे हैं कि ये जैसे अगर हम लोग मेरे पास है, अगर मेनली मैथ्स में अगर हम लोग यूज कर सकते हैं ओके कि जैसे अगर मैथ्स में हम लोगों का वेस्ट बंगाल बोर्ड में क्लास 10 में जैसा एक पोर्शन है कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ये एक सम है कि अगर छोटा हम नंबर को छोटा लिए कि समझने में आसान हो जाएगा कि यू डिपॉजिट ₹100 तो कोई भी बैंक में हम लोग डाले, और इसको अगर 7 साल के लिए रखेंगे और बैंक मान लो इंटरेस्ट दे रहा है 10% का, तो तब जाके हमको अमाउंट के तौर पे कितना मिलेगा। तो इसको हम लोग पाइथन के जरिए कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। पहले हम लोग सोचते हैं कि मेरा सेविंग्स कितना, ये 100 रुपीज जो है ये चेंज करेगा, मान लो 2000 5000 कुछ भी हो सकता है। तो 10% मतलब क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला था वो अगर हम लोग लिखते हैं तो अमाउंट का जो फॉर्मूला है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 + R/100 टू दी पावर n, ये होता है अमाउंट का फॉर्मूला। सो नाउ टू दी पावर 7 मतलब क्लासरूम में विदाउट कैलकुलेटर, और हम लोगों का तो मोबाइल फोन भी अब क्लास में ले जाना बंद हो गया, तो विदाउट कैलकुलेटर करना बहुत मुश्किल है टू दी पावर 7 7 साल में, तो ये प्रॉब्लम करेगा। तो तब जाके इसको हम लोग इजीली पाइथन से कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ चेंज करेंगे ये नंबर चेंज करेंगे, रेट को चेंज करेंगे, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट what will be the amount with 2 to 3 lines of programming. So पहले हम लोगों को क्या सोचना है, और पाइथन एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, मतलब एक डायनामिक लैंग्वेज है, इस तरह ऐसे सेविंग्स को पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर हम लोग लिखते हैं मान लो सेविंग्स की जगह पे सेव लिखते हैं, और ग्रोथ मल्टीप्लाई ऐसा नहीं है क्योंकि हम दिखाए, क्योंकि ये सब चीज हम लोग यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर के साथ कैपिटल लेटर जिसको कभी कभी कैमल केसिंग बोलते हैं, ये सब यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रोथ के लिए GRO ले लिए, तो सेविंग्स के लिए लिखे 100 और ग्रोथ मल्टीप्लायर के लिए 1.10। क्योंकि यहाँ पे अगर 1 + 10/100 करेंगे तो ये एग्जैक्ट कम टू व्हाट 1.1। तो एक्चुअली द फॉर्मूला हो गया सेविंग्स के साथ हमको 1.1 का मल्टीप्लिकेशन करना है, मगर यहाँ पे एक पावर है, एक्सपोनेंट है, तो पावर यहाँ पे कितना है, पावर यहाँ पे है 7। सो यहीं पे प्रॉब्लम आ जाता है नॉर्मल कैलकुलेशन में, और स्टूडेंट्स क्या होता है करते करते इसको आंसर नहीं आता है और वो लोग सोचता है मैथ बहुत ही खराब सब्जेक्ट है। बट अगर हम लोग इसको पाइथन से दिखा सकते हैं, वो भी प्रोग्रामिंग करेगा, प्रोग्रामिंग करके क्या होगा, उसका भी भीतर का जो भी है आइडिया वो उभर के आएगा, वो एंगेज रहेगा सब्जेक्ट के भीतर। जब तक ना एंगेजमेंट होगा तब तक कोई भी सब्जेक्ट स्टूडेंट या कोई भी लोग नहीं लेता है। एंगेजमेंट इज द फर्स्ट स्टेप। सो तब जाके हम लोग देखते हैं इसको कैसे हम लोग पाइथन से करेंगे। तो द बेसिक लॉजिक इज दैट A = P, मतलब मेरा सेविंग्स जो है 100 रुपया का सेविंग्स है,
और 1.1 हो गया मेरा ग्रोथ मल्टीप्लायर और 7 हो गया टाइम। तो तब जाके अगर हम लोग इसको करेंगे तो हम लोग देखते हैं क्या आता है आंसर। तो हम लोग क्या लेंगे, सेविंग्स SAV इज इक्वल टू ले लिए ₹100, ये नंबर चेंज होगा। दूसरा में हम लोग ग्रोथ मल्टीप्लाई को मान लो थोड़ा सा लिखे क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, तो ग्रोथ मल्टीप्लाई का तो हम लोग कितना लेंगे 1.1, 10% है इसीलिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग एक रिजल्ट ले लेंगे। तो रिजल्ट जो है मतलब वो रिजल्ट कितना आएगा, रिजल्ट के लिए इसको एक ले लेते RE। रिजल्ट क्या होगा, दैट इज अमाउंट। तो अमाउंट कैसे मिलेगा, अमाउंट मिलेगा 100 को हमको मल्टीप्लाई करना है किससे, 1.1 का टू दी पावर 7। तो अभी देखते हैं अगर ऐसे करेंगे तो आंसर नहीं आएगा क्योंकि दोनों ही मल्टीप्लायर है। तो और यहाँ पे 7 देंगे तो ये नहीं करेगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन पहले 100 को 1.1 से करेगा फिर 7 से करेगा। ये 1.1 के पावर में हमको 7 लिखना है, तो पावर विल बी डन विद द हेल्प ऑफ डबल एस्ट्रिक्स। तो डबल एस्ट्रिक्स देंगे तो ये पावर का काम करेगा और 7 साल है तो ये 7 डाल दिए इजीली। इसको अगर हम लोग करने के बाद ये अगर हम लोग रन करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, हमको प्रिंट रिजल्ट करना है, तो इसलिए प्रिंट लिखना जरूरी है। सो प्रिंट रिजल्ट को हम लोग RES लिखे हैं तो RES डाल दिए और डाल के हम लोग इसको रन करेंगे। सो विद इन अ सेकेंड, कितना फास्ट है पाइथन, विद इन अ सेकेंड ये रिजल्ट को इतना डिजिट ऑफ एक्यूरेसी से दे दिया। तो एक्यूरेसी मैटर्स। तो तब जाके अगर हम लोग 2 डिजिट तक लेते हैं तो मेरा कितना रुपया हमको मिलेगा, 194 रुपीज एंड 87 पैसा मिलेगा और 100 रुपीज से। तो अगर यहाँ पे 100 के जगह पे हम लोग इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, 2500 कर देते हैं, तो इस तरह एक मान लो कि कोडिंग से, और यहाँ पे अगर हम लोग रेट को थोड़ा 12% बना दिए, सो एक कोडिंग से हम लोग बहुत सारा जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। सो ये चेंज कर गया 358 हो गया 2। सो इस तरह ये 100 था इसीलिए ये शो नहीं किया, इसको 2500 करना होगा। तो अब रन करते हैं। सो द आंसर कम्स 8957 इतना। सो इस तरह इसके बाद जो पोर्शन हम लोग करेंगे, तो अगर यहाँ पे इसको लिखना है प्रिंट आउट, अगर इसको करना है कि आई स्टार्टेड विथ ₹100 एंड नाउ एंड अमाउंट जो मिला था 100 रुपया डाले थे बैंक में, और इसको अगर हमको मिल रहा था कितना 194 से भी ज्यादा, तो ये प्रिंट आउट हम लोग अभी कर ही सकते हैं क्योंकि हम लोग कैसे लिखते हैं ये जान गए। सो सेकेंड एक्सरसाइज, जो हम लोग अगर फिजिक्स में स्टूडेंट को एंगेज करने चाहते हैं, तो क्लास 9 में स्पीड डिस्टेंस टाइम है, इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैटप्लॉटलिब। तो आज सब कुछ नहीं दिखा सकते मगर क्या होगा, इसका ग्राफ हम लोग डाल सकते हैं। हम लोग स्कूल में किए हैं, जैसे एक वेबिनार किए थे कि क्वेश्चन के ऊपर जो इंडेक्स है, मतलब क्या होगा पॉल्यूशन इंडेक्स के ऊपर हम लोग एक वेबिनार किए थे। तो उसके ऊपर हम लोग क्या किए थे, नेट से डाटा कलेक्ट किए थे और 25 सिटीज को हम लोग उसमें पिक आउट करके रैंडमली उसको लगाए थे, और फिर विद द हेल्प ऑफ पाइथन एंड मैटप्लॉटलिब, जिससे हम लोग ग्राफिकली शो कर पाए कि कौन सा सिटी में पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है और कौन मैक्सिमम है, कौन मिनिमम है, कौन एवरेज है। तो विद द हेल्प ऑफ लिटिल बिट ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, तो अगर इसको हम लोग कर सकते हैं कि द इनिशियल स्पीड, अगर कोई बॉडी जा रहा है तो उसका चाल जो है, प्राथमिक चाल उसमें है 5 मीटर प्रति सेकंड के चाल में वो चल रही है, तो अगर उसमें तब जाके 6 सेकंड के बाद, और ये क्या हो रहा है, ऊपर ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रहा है,
सो इसका मतलब है वो ग्रेविटी से उसमें काम करेगा, तो वो ऊपर की तरफ 0.6 सेकेंड के बाद वॉइस कम हो गया सर थोड़ा। 0.6 सेकेंड के बाद वो कितना दूरी तय करेगा। फिर से शाम्स को बोल रहा है, तो दिस इज हाउ द इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट विल कम विद द हेल्प ऑफ पाइथन, कि उसमें इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड का शायद हिंदी में होता है चाल, तो उसका प्राथमिक चाल है 5 मीटर पर सेकेंड, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन जो है वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा ऊपर की दिशा में 0.6 सेकेंड के बाद। तो अगर इसमें हम लोग नॉर्मली अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा, ये वो देख भी नहीं सकता है, तो इसको हम लोग पाइथन से दिखा सकते हैं, या तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसको पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला लिखते हैं। इनिशियल स्पीड को हम लोग जनरली u से डिनोट करते हैं, तो u का वैल्यू कितना बोला है, u का वैल्यू बोला है 5 मीटर पर सेकेंड। सो द इनिशियल स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक रिक्वेस्ट हम देखें अभी कि इंग्लिश में भी थोड़ा बोल लेते हैं, कि द इनिशियल स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड, तो ये मूव कर रहा है अपवर्ड के डायरेक्शन में, तो वी नो दैट वी आर टेकिंग अपवर्ड एज नेगेटिव विथ रेस्पेक्ट टू कंपेयर टू जी में अपवर्ड वैल्यू को नेगेटिव माना जाएगा। सो तब जगह इनिशियल स्पीड बॉडी का कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, और क्या है, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है हम लोगों को 0.6 सेकेंड के बाद, तो 0.6 सेकेंड में ये इसके पास टाइम है, और हमको क्या ढूंढना है, हमको ये कितना ऊंचाई चढ़ेगा। सो अगर ऊंचाई को हम लोग y से डिनोट करते हैं, इसको किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, h से भी डिनोट कर सकते हैं, तो फॉर्मूला पहले सोचना होगा क्या होगा। फॉर्मूला है क्या था, s इज इक्वल टू या हाइट इज इक्वल टू ut, ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो ये चीज को पाइथन से कैसे दिखाएंगे, ये तो हम लोग नॉर्मली कैलकुलेट भी कर सकते थे, तो पाइथन लेने का फायदा क्या हुआ, पाइथन लेने का फायदा क्या हुआ, अभी हम लोग आते हैं कि कैसे स्टूडेंट को हम लोग एंगेज कर सकते हैं, कैसे हम लोग कम रिसोर्स में नॉर्मल ग्राफ पेपर में ये कैसे जा रहा है, इसका मोशन का प्लॉट भी हम लोग मैनुअली बना सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर करेंगे, इसको मिटा दे रहे, तो अगर फिर से हम लोग चले आते हैं कि एनाकोंडा प्लेटफॉर्म में, और तब जाके हमको हमारे पास क्या क्या है, वेरिएबल जो है u का वैल्यू कितना था, u का वैल्यू था 5 मीटर पर सेकेंड, सिर्फ नंबर ही लिखेंगे, यूनिट नहीं लिखेंगे, तो 5। इसके बाद था क्या, इसके बाद हम लोगों के पास टाइम था, टाइम का वैल्यू कितना था, टाइम था यहाँ पे इस सम्स के हिसाब से 0.6 था, और उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए था, और क्या था, जी का वैल्यू था, जी का वैल्यू हम लोग आसानी के लिए ले लेते हैं 10, 9.8 भी ले सकते हैं, 8.1 भी ले सकते हैं। अब फिर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला में क्या था, फॉर्मूला में था y इक्वल्स टू, तो फॉर्मूला में था y इज इक्वल टू क्या था, y इज इक्वल टू था ut, सो u के साथ t को मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई का सिंबल है एस्ट्रिक, ut, फिर क्या था, एक माइनस था, फिर था हाफ, तो हाफ को हम लोग यहाँ पे 0.5 लिए, फिर था g का मल्टीप्लाई था, तो g का मल्टीप्लाई अगर रहता है तो मल्टीप्लाई g करेंगे, और फिर g के साथ क्या मल्टीप्लाई था, t था, और t का जो पावर था वो था 2, तो इसलिए डबल एस्ट्रिक्स देके 2, तो ये हो गया 0.5 मतलब हाफ gt स्क्वायर, तो ये हो गया y। अब अगर हम लोग y प्रिंट करते हैं तो इसका क्या वैल्यू आता है देखते हैं, और इसको अगर हम लोग रन करते हैं तो देखो कितना जल्दी ये तब जाके 1.2 मीटर ऊपर उठेगा। तो ये साम्स करने से ये तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते, थोड़ा हो सकता है कैलकुलेशन में ज्यादा होगा, मगर यहाँ पे अगर हम लोग 6 को टाइम को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके कम करे, 0.58 कर दिए, अब रन करे, तो हमको बहुत सारा डाटा मिलता जाएगा।
और यही डाटा को हम लोग को ग्राफ पेपर में डाल के हम उसको आसानी से समझ सकते हैं कि वो कैसे कैसे ऊपर जाएगा तो उसका वेलोसिटी कैसे कैसे कम हो रहा है, सब कुछ निकाल सकते हैं। अगर ये नीचे आता है तो क्या करेंगे, जस्ट ये माइनस साइन को हम लोग प्लस में चेंज कर देंगे एंड वी गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। तो अब देखो वैल्यूज क्या हो गया, बढ़ गया है। इसका मतलब नीचे आएगा तो वो उसी टाइम में ज्यादा दूर जाता है, ऊपर में कम दूर, टाइम लेवल सेम था। तो ये एक था जिससे हम लोग प्रिंट वाई कर सकते हैं, उसके साथ उसका कितना वेलोसिटी होगा, अगर हमको वेलोसिटी भी चाहिए उस दौरान, तो वेलोसिटी अगर फाइनल वेलोसिटी चाहिए तो एक पॉइंट ले लिए v, और v को हम लोग कर दिए u माइनस, यहाँ पे हम लोग प्लस में कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ कर रहे हैं, तो u प्लस g इंटू टी। अब क्या होगा, यहाँ पे दोनों को अगर हम लोग फाइंड करने चाहते हैं, सो v कॉमा y, तो v हो गया उसका फाइनल वेलोसिटी 0.58 सेकेंड के बाद, और y ये कितना दूर गया है, अगर इसको रन करेंगे तो मेरे पास दो वैल्यू आ गया, 10.8 मीटर वो ऊपर से नीचे गिरा है, ये उस टाइम पे उसका वेलोसिटी है 10.8 मीटर पर सेकेंड, और उसमें हाँ, सो दैट मीन्स अगर इंग्लिश में हम लोग करेंगे तो u हम लोग वी नो दैट वैल्यू ऑफ u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द substance or the projectile as it is moving downward or downward. When it is moving downward, we are taking positive sign. So the sign or the formula change, v is equal to u plus g into t. And what is the displacement? Displacement will be ut plus half gt square. So now if you try to find out 2 or 3 more variables data with the help of a same programming, so with that help we can see that we can find the value of v without unit of course, and we are also finding the displacement of the particle after the elapsation of 0.58 seconds. So by this technique we can easily, and after that क्या होगा, ये हम लोग with the help of this we can find out 10 or more number of data, and that data can be plotted manually in the graph paper, and with the help of the graph paper, so we can engage the student more and more, so they can engage, they cannot bore, the last bencher will not sleep during my class, so they will actually, और यहाँ पे computational thinking हो रहा है कि कैसे हम लोग पहले इस point को, एक चीज को हम लोग कैसे ब्रेक करें, कैसे स्मॉल वेज में ब्रेक करके सोचे किसमें हम लोग फॉर्मूला लगा सकते, किसमें हम लोग पाइथन डाल सकते टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। ऐसा नहीं कि सभी में पाइथन डालो, ये कभी हो नहीं सकता है। पाइथन जो हार्ड स्पॉट है, ये वी यू जी ये सब कोई देख नहीं पा रहा है। न्यूटन देख पाया था वो अलग बात है, किंतु मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ, मेरा स्टूडेंट भी नहीं देख पा रहा है। तो उसको दिखाने के लिए हमको तब जाके ये छोटा छोटा इनोवेशन विद द हेल्प ऑफ पाइथन हम लोग कर सकते। ग्राफ प्रोजेक्टाइल 11 में नहीं आएंगे तो प्रोजेक्टाइल का ग्राफ हम लोग नहीं जान सकते। अगर यहाँ पे यूज करके हम लोग एक इसके साथ एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या स्पीड डाल देते तो ग्राफिकली जो पैराबोलिक कर्व है वो प्रोजेक्टाइल में आ जाएगा। इसके बाद क्या होता है, केमिस्ट्री में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। केमिस्ट्री में इक्वेशन सॉल्विंग जो बहुत टफ लगता है किसी किसी को, इक्वेशन सॉल्विंग एंड बैलेंसिंग हम लोग केमिस्ट्री में विद द हेल्प ऑफ पाइथन से कर सकते हैं। So now we move to the next portion, that is तो नेक्स्ट जो पोर्शन था वो था जी लेके इसको करना था। सो यहाँ पे एक बोनस पोर्शन है। सो पहले भी सब्जेक्ट इंटीग्रेशन हो गया है, फिर भी एक बोनस दे रहा है कि मेक ए लिस्ट ऑफ फ्यू नंबर्स। अगर हम लोग लिस्ट कैसे लिखा जाता है तो याद रखना है, पाइथन में लिस्ट को हम लोग थर्ड ब्रैकेट में लिखते हैं। तो अगर कोई भी चीज को अगर हम लोग थर्ड ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट देके अगर कोई भी चीज को लिखते हैं, जैसे मान लो 2, 5, 7 ऐसे लिखते हैं तो दे आर बिकम लिस्ट। और अगर हम लोग इसको फर्स्ट ब्रैकेट में लिखते हैं जैसे 2, 5, 7, सो दे आर एक्सिंग, इट इज अ स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज,
they are quite different from this. This is not list. So this is will be a tuple. इसको हम लोग बोलते हैं tuple. और ये हो जाता है लिस्ट. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जो ये लिस्ट है. लिस्ट क्या क्या नंबर में है? ये 1 2 3 4 सबसे छोटा छोटा नंबर हम लोग चूज किए. 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लिस्ट है. अब यहाँ पे क्या करना है? तो अगर हम लोग इस लिस्ट को लिखते हैं और यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से ये लिस्ट से और कौन सा इवन नंबर है, कौन सा ऑड नंबर है, ये छोटा क्लास में दिखा सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए. तो इजीली हम लोग के पास लिस्ट में अगर 15 नंबर है तो 15 नंबर का इवन नंबर और ऑड नंबर कैसे हम लोग जल्दी से फाइंड कर लेंगे. तो ये एक इनकॉर्पोरेशन है जो हम लोग डाल सकते हैं स्टूडेंट के लिए. तो कैसे करेंगे थोड़ा सा देखते हैं. बहुत ही आसान है. तो चलते हैं उसके और. तो दिस इंटरप्रिटेशन. तो अगर पहले हमको लिस्ट बनाना है उसमें एक वेरिएबल लेंगे. लेट द वेरिएबल बी एज या एन ले लेते हैं. नंबर है तो एन ले लिया या नाम ले लिए नंबर के लिए. सो लिस्ट क्या क्या है? लिस्ट मतलब हमको स्क्वायर ब्रैकेट डालना पड़ेगा. तो याद रखना स्क्वायर ब्रैकेट इज डिफरेंट फ्रॉम कर्ली ब्रैकेट. सबको अलग अलग वे में डिफाइन किया गया. तो हम लोग लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट नंबर इज 10. तो ऐसे बहुत सारा नंबर लिख सकते हैं. तो दिस इज द नंबर. तो यहाँ से हमको प्रिंट आउट करना है. अगर हम लोग ओरिजिनल नंबर को प्रिंट आउट करने की कोशिश करते तो क्या करेंगे? ओरिजिनल लिस्ट को अगर प्रिंट आउट करने की कोशिश करेंगे तो लिखेंगे प्रिंट, फिर फर्स्ट ब्रैकेट देंगे और लिखेंगे नंबर. So if you try to print out the original number, you just write number is the variable. If you take a as the variable, so you write print a and run the program. So your original numbers will come because I won't take यहाँ पे हमने 0 9 के बाद कॉमा नहीं दिए तो देखो ये 910 को ले लिया. तो अगर कमा देते हैं तो ये फिर से लेगा तो 10 लेगा. So now how we can easily find out the even numbers. So the basic numbers for finding even numbers की even numbers जो होता है, what are even numbers? Even numbers are those numbers which are divided exactly divisible by 2. That means the remainder is 0. So can you say which division operator we choose in this case? कौन सा division operator हम लोग choose करेंगे इसके लिए? So there are 3 division operator. One is 1/, second is double/, and third one is the modulo sign. So which operator do you take? Plus मतलब ये slash, 1/, double/, or the modulo sign. So since we are considering even numbers are those numbers which when divided by 2 gives no remainder, so that means we are taking the modulo sign. So modulo gives the remainder. This gives the floating. फ्लोट मतलब पॉइंट में जो क्वोशिएंट आएगा, और ये जो डबल है ये इंटीग्रल क्वोशिएंट देता है. तो वी आर एक्चुअली कंसीडरिंग द रिमाइंडर इन दिस केस शुड बी 0, सो वी टेक द मॉड्यूलो साइन. सो आई क्लियर माय ड्राइंग्स. सो नाउ तब जाके क्या होगा, कैसे करेंगे, हाउ विल यू परफॉर्म दैट. सो वी आर टेकिंग अ वेरिएबल एज इवन. सो इवन विल बी कमिंग फ्रॉम व्हाट? इवन विल बी कमिंग फ्रॉम दिस लिस्ट. सो इवन लिखेंगे ये नंबर को दिखाने के लिए. फिर हम लोग कहाँ से ये इवन नंबर को चूज करेंगे? ये हम लोग चूज करेंगे लिस्ट से. सो लिस्ट से इसलिए लिस्ट लिखे. अब क्या कर रहे हैं, दिस प्रोग्रामिंग इज लाइक अ फिल्टर. ये इसको फिल्टर करेगा. फिल्टर करके जो ऑड नंबर है उसको फेंक देगा और जो इवन नंबर है उसको छाप के रख देगा. So that's why we are using the filter. फिर हम लोग लेंगे. तो ये आज उतना समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा ये सब लिख सकते हैं आप लोग अगर चाहते हैं तो. लैम्डा एक्स, जैसे सेट ऑपरेशन हम लोग लिख सकते हैं उसी तरह सेट ऑपरेशन लिखते हैं. एक्स
So x is the all the numbers, variable numbers in the list. It will be run and a repeated way. All the number को ये check करेगा, check all the number. So इसलिए इस number को हम लोग 2 से divide करेंगे और रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 0. यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमको याद रखना है, the equal sign in the Python is the assignment value. You are assigning number as 1 2 3 4. It is not used as a equal value. तो equal देने के लिए हम लोग को Python में we have to use 2 equal sign. That will actually acting as the equal. What in mathematics. तो इक्वल कितना आएगा हमको, हमको चाहिए इवन नंबर, मतलब ये 0 होना चाहिए और हमको क्या पुट करना है, वो नंबर को शो करना है. नंबर को हम लोग कैसे लिखे थे, नंबर को हम लोग लिखे थे NUM, तो NUM को टाइप कर देंगे यहाँ पे. तो अगर ये करके देखते हैं कि ये क्या आएगा, तो फिल्टर क्यों किए, क्योंकि इस नंबर को वो छाकेगा, इसलिए फिल्टर. लैम्डा एक बहुत ही बड़ा एक फंक्शन है जिससे हम लोग ये फिल्टर मैपिंग बहुत सारा डाल चीज को कर सकते हैं. तो अगर इवन, अब क्या करना है, अब हमको ये इवन आया, अब हमको इस इवन नंबर को प्रिंट करना है, अदरवाइज इट विल नॉट शो. तो प्रिंट डालेंगे, फिर इवन डालेंगे, तो देखते हैं अब क्या आता है. अब इसको रन करें. सो वाओ, ये आ गया, देखो ये 2 4 6 8 10 ये आ गया. नाउ कैन यू थिंक हाउ टू print out the odd numbers in the list? So the basic function remain the same. हमको अगर odd number find करना है तो कैसे हम लोग इसको find करेंगे. तो अगर odd number चाहिए, so even and odd and prime numbers, these are the quite a tricky things. हमको आता है मतलब ये नहीं कि सबको आएगा, या किसी को आता है मतलब हमको भी आएगा, ये सही नहीं है. तो इसको कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो इवन नंबर मीन्स द नंबर विच डिवाइडेड बाय 0 गिव्स नो रिमाइंडर. मगर हम लोग बोलते नहीं है रिमाइंडर, हम लोग बोलते 2 से डिवाइड होता है. तो रिमाइंडर इज हियर क्रूशियल रोल, सो दैट्स व्हाई इक्वल्स टू 0 देना है. तो अगर हम लोग ऑड नंबर चूज करते तो क्या होगा, वो 2 से डिवाइड होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, एक रिमाइंडर रहेगा. तो बेसिकली क्या करेंगे हम लोग, इसी चीज को हम लोग कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे. सिर्फ डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस केस, इट वोंट बी इक्वल टू 0. अगर ये 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू कैसे लिखा जाता है पाइथन में. सो नॉट इक्वल टू लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 के पहले ये डाल देंगे. सो 0 को पहले अगर हम लोग ये डाल दिए, सो इट बिगन्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे हमेशा रिमाइंडर रहेगा. तो अब अगर हम लोग इसका प्रिंट आउट निकालते हैं, प्रिंट ऑफ ऑड, सो वी गेटिंग, शायद देखते हैं क्या होता है. सो वी गेट द ऑड नंबर. सो इस तरह ये फिल्टर का काम करेगा. ऑड नंबर, इवन नंबर को हम लोग फिल्टर कर सकते हैं. इवन वी स्क्वायर, वी कैन स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं सब नंबर को. तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं. कैसे बायोलॉजी में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं. there is a question for that. Yeah, so we will take some of the questions now, and then we will also announce the next session, because it was introduction session. बस हम आज एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे क्या वेरिएबल्स है इसमें और किसको वेरिएबल बोलते हैं, इसके सिंटैक्स को थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे. तो ये नेक्स्ट सेशन में हम घर में कोशिश करो कि, इसलिए ये होमवर्क हमने दिया है कि कैसे इस लिस्ट का स्क्वायर और क्यूब हम लोग निकाल सकते हैं. सर्च इंटरनेट, गो थ्रू. जब तक तुम ना प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, तब तक हम लोग सीखेंगे नहीं.